Hello students, today we will discuss communication barriers. Students, as you already know, communication is a two-way process in which two or more than two persons exchange their ideas, their feeling, their attitude, their experience and other information. And we have already read in communication model that sometimes there may be barriers occur in this communication process, and now we discuss these barriers. So, first of all, we discuss types of barriers. Students, first barriers which we discuss is intrapersonal barriers. We can also call it social psychological barriers. Second, interpersonal barriers. Third, extrapersonal barriers. फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. फिफ्थ, हमारी सिमेंटिक या लिंग्विस्टिक बैरियर. साइकोलॉजिकल बैरियर्स. ओके, नाउ वी डिस्कस इंट्रापर्सनल बैरियर्स. इंट्रापर्सनल barriers. Intrapersonal barriers are those barriers which occur due to individuals, or you can say an individual's inbuilt barriers are known as इंट्रापर्सनल बैरियर्स. मीन्स ये एक अकेले पर्सन की ही कुछ एक हम कहें कि बिहेवियर या उसके एटीट्यूड में कुछ चेंज होने के कारण एक पर्टिकुलर एक अकेले पर्सन की जो के कारण जो ऑब्स्टेकल क्रिएट होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो होती है इंट्रापर्सनल बैरियर्स. ठीक है, और ये एक अकेले इंडिविजुअल के कारण ही में ही ये अक्कर होती है, ये एक अकेले इंडिविजुअल में ही ये होती है. एंड हम ये कह सकते हैं कि एक सेम मैसेज को एवरी पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी होती है, तो अंडरस्टैंडिंग की भी उसकी अलग अलग पावर होती है. तो कहते हैं ये कह सकते हैं कि ईच पर्सन interpret the same message in a different way. Everybody in this world is different from one another, so the quality, yeah, you can say a message can be misunderstood by different persons in a different way. Okay, so such type of intrapersonal barriers are included due to following traits of a बिहेवियर. फर्स्ट, एटीट्यूड. सेकंड है हमारा फियर फैक्टर. थर्ड, इवेल्युएशन. फोर्थ, रॉन्ग अजम्पशन. डिसइंटरेस्टेड लिसनर. वेरिड परसेप्शन. सेल्फ इमेज. स्ट्रेस. हालो एंड हॉर्न इफेक्ट. स्नैप रिएक्शन. नाउ वी डिस्कस्ड फर्स्ट type of trait, which is attitude. Attitudes differ from person to person. Some people think that they know each and everything, so they didn't try to understand the message which is conveyed by other person fully. They think that they knew, yeah, they think that they knew everything and they are right. So this type of attitude also act as a barrier, and it may prevent them to learn something new about others. Second, fear factor. Sometimes a person, some persons feels fear to speak and face anybody. It is also create a barrier in स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. कुछ पर्सन में के बिहेवियर में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि उन्हें डर लगता है कि वो अपनी हायर क्वालिटी से कुछ क्वेश्चंस कर सकें, तो इसके कारण है वो प्रॉपर मैसेज वो नहीं ले पाते हैं या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाती है, जिससे ये एक ऑब्स्टेकल क्रिएट होती है. थर्ड है हमारा इवेल्युएशन. कुछ लिसनर्स ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी बात को सुनने की या अच्छे से दूसरे पर्सन को सुनने की क्वालिटी नहीं होती है, तो वो इम्पेशेंट होते हैं और वो
दूसरे पर्सन को अपनी बात को कंप्लीट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, इससे पहले ही वो दूसरे पर्सन के बारे में अपनी आप कहें कि एजम्पशन बना लेते हैं। तो इस टाइप का जो इवेल्युएशन है वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है। थर्ड है रॉन्ग अजम्पशन। Wrong assumption, or you can say wrong idea on the part of the teacher about the students may cause barrier in conveying message. Sometimes teachers think that they made assumption that students have learned this chapter in their previous class and they didn't tell them about the basic information. But it may also that students have forgot which we have learned in their previous class. So this type of assumption create misunderstanding. Disinterested listener. If a listener is not interested to listen the speaker, then it is not possible for a speaker to convey the message properly. Varied perception. Different individual think या perceive situation in a different way. It also act as a obstacle in communication. कुछ पर्सन एक ही, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक ही बात को अंडरस्टैंड करने के हर एक पर्सन का अलग अलग वे होता है। सेल्फ इमेज, कुछ पर्सनस की सेल्फ इमेज होती है और वो चाहते हैं कि हर कोई पर्सन है उनकी सेल्फ इमेज की तरफ ही अटेंशन करे। सो सच टाइप ऑफ एटीट्यूड ऑल्सो क्रिएट obstacle. Stress. A person who is preoccupied with his or personal problem, जिसके अपनी ही पर्सनल प्रॉब्लम है, he is not able to listen the message properly. पर्सनल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है एक ऑब्स्टिकल। होलो एंड हॉर्न इफेक्ट। कुछ हमारे होलो एंड हॉर्न मीन्स प्रीवियस इफेक्ट, मीन्स हमारे जो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होती हैं किसी पर्सन के साथ, वो भी हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। मान लो किसी एक ऐसे एम्प्लॉय के साथ या किसी एक ऐसे फर्म के साथ हमारे पहले के पास्ट के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हों, तो बाद के उन कंपनी के साथ कम्युनिकेशन के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। स्नैप रिएक्शन। समटाइम्स पीपल में पेशेंस नहीं होता अपने स्पीकर की बात सुनने के लिए, इसलिए वो वहाँ से मेंटली स्विच ऑफ हो जाते हैं। आप भी ऐसा करते हो ना, क्लास में कई बार टीचर बोलता रहता है हम फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होते हैं बट मेंटली नहीं होते। तो कुछ इस तरीके के रिएक्शन स्नैप, जिसको स्नैप रिएक्शन कहते हैं, ये भी मैसेज के स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में भी ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी हमारे कुछ एक इंट्रापर्सनल बैरियर जो एक पर्टिकुलर पर्सन के, एक इंडिविजुअल के खुद के बिहेवियर के कारण क्रिएट होते हैं। ओके, थैंक यू। Students, next communication barrier we discuss is interpersonal communication barrier. Interpersonal communication barriers are occurs due to inappropriate transmission of message between two or more than people. ओके ये क्या है, जो हाँ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन था वो एक ही पर्सन के बिहेवियर के कारण था, बट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में मैसेज का इनएप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन होता है। ये बैरियर है मेनली आप यूँ कहें कि फॉलोइंग रीजंस रहते हैं इसकी। फर्स्ट है लिमिटेड वोकेबलरी। द स्पीकर sometimes may not be able to communicate message effectively because he has a lack of appropriate words. Without vocabulary, a person cannot convey the message in a proper way and the receiver is not able to understand the message. So limited vocabulary भी एक ऑब्स्टिकल है मैसेज को स्मूथ कन्वे में। नेक्स्ट हमारा आता है इमोशनल आउटवर्ड। एक पर्सन है एक मैसेज को कम्युनिकेट प्रॉपर वे में नहीं कर पाता यदि वो इमोशनली अपसेट है। इफ़ ए पर्सन इज एनोयड, अग्रेसिव, बीटर, प्लेजेंट और टेरिफाई, देन द पर्सन मे नॉट बी
able to uh, uh, able to convey or not receive the message in a proper way. फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम अपसेट हैं तो ना ही हम अपने मैसेज को प्रॉपर तरीके से किसी को कन्वे कर पाएंगे, और इफ़ द रिसीवर इज अपसेट देन ही इज़ नॉट एबल टू हियर द मैसेज प्रॉपरली. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कल्चरल डिफरेंस. डिफरेंट कल्चर provide people different way of thinking and interpreting the world. According to culture, people have different views. Some culture has different way of expressing emotions, and all these जो these factors, all these dissimilarities are act as a barrier in a smooth flow of communication. For example, in India, people generally like to addressed by their surname, like Mr. Mehta, Mr. Raheja, Mr. Kulkarni, and in other countries it may create obstacle with someone. नेक्स्ट हमारी आती है पुअर लिसनिंग स्किल. पुअर लिसनिंग स्किल, जैसे कि हम पहले इंट्रा पर्सनल में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं. लिसनिंग हमारी जो कम्युनिकेशन है बेटर या इफ़ेक्टिव तभी हो सकती है जब हम जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो एज इट इज़ रिसीवर तक पहुंच सके. अब लिसनिंग भी एक बेस्ट पार्ट है कन्वर्सेशन का. नो मैसेज कैन बी इफेक्ट कन्वेड प्रॉपरली if the speaker if the receiver doesn't have listening skill. यदि हमारा मैसेज लिसनर है वो अच्छे से सुनेगा ही नहीं तो हमारा मैसेज प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं हो पाएगा. मैसेज इफेक्टिव तभी है जब हमारा जो कन्वर्सेशन है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फुली हमारे रिसीवर तक पहुंच जाए. नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्रॉपर चैनल सिलेक्शन. चैनल सिलेक्शन मीन्स मीडियम थ्रू विच वी कन्वे मैसेज. यदि इफ a sender choose inappropriate channel of communication may not come to an end, या communication cannot reach to its proper person. Detailed instruction presented over the telephone, for example, may be annoyed for communication. नेक्स्ट हमारा है ट्रांसमिटिंग बैरियर्स. थिंग दैट कम इन द वे ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन आर समथिंग कोल्ड नॉइज. जैसा कि हमने शेनन वीवर मॉडल में भी किया था. शेनन वीवर यही कहता है ना कि समटाइम्स मैसेज के स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में आउटवर्ड या एक्सटर्नल बैरियर्स इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि नॉइज़. कई बार मैसेज एक ऐसे एरिया में कन्वे किया जाता है जहाँ पे टू मच नॉइज़ होता है, तो ड्यू टू नॉइज़ it is not possible for receiver to receive the message in a proper way. And sometimes if we are conveying the message in a through हम यू कह सकते हैं इंटरनेट मीडिया, तो like an email, and if my email or letter is not formatted properly, then it can, or you can say it contain grammatical error हो सकती है, spelling error, then the message cannot be able to convey in proper way. This is all about interpersonal barriers. Thank you.